Good morning, class. This is Firdaus. As you all know that I'm your math teacher. So today I'm going to teach you class 5 mathematics. Okay. So in our previous classes, online classes, we have completed our first chapter, that is number and numerals, and second chapter, that is Roman numerals. So today I'm going to start our third chapter, that is addition and subtraction. So before starting the chapters, we will discuss about the some properties of addition and subtraction. So first property you have, when we add to the any numbers, the sum is number itself. I will show you how. According to first property, when we add a zero to any numbers, the sum is, जो आंसर आएगा क्या आएगा, number itself आएगा. So according to property 1, that is properties of addition, okay, addition and subtraction. Okay, see, according to first property, what, that when you add 0 to any number, let's take 45, then you got a same number, that is 45, and when you add 45 plus 0, that means a number with a 0, then again you will get the same answer. And if you subtract the, I'm taking again 45 minus 0, you will get 45. Okay, so and this is not valid for subtraction, that is you alternate them. Okay, only valid for addition. So second chapter, no sorry, second property you have, that is when we add 1 to any numbers, so we will get a next successor and the predecessor. So when you subtract a number from itself, the difference is 0. थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जब आप किसी नंबर को खुद से अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, आपको 0 ऑब्टेन्ड होता है. ओके, सो नाउ properties 4, that is commutative property. Okay, if the order of a number be added changed, the sum will remain same. अगर आप तो कम्यूटेटिव 4 नंबर में दिखा रहा हूँ आप लोग को कम्यूटेटिव. ओके, सो लेट्स टेक one number, that is 4 plus 5 will give you 9 when you add 4 plus 5, and when you change the order, that is replace 4 by 5 and replace 5 by 4, that is I am changing the order here, so you will get the same answer. So this property will show that the commutative law. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, इट मीन्स अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो कोई भी फर्क नहीं आने वाला है. तो ये क्या बताता है, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बताता है. ओके, नाउ third property, that is associative property. The sum of the three or the more numbers does not changed even when their group is changed, but the same is not true for the subtraction. subtraction के लिए ये वैलिड नहीं होगा. ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे. associative law, property 5, that is associative property. Okay, so if you have a 3 number, that is let's say a plus b plus c is equal to a plus b plus c, only here I am grouping. In LHS I am grouping b plus c. LHS means what, the expression which is lie on a left side of a equal sign, and here I am grouping b plus c. देखिए ग्रुपिंग का ऑर्डर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या बताता है, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है ऑफ एडिशन, बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए ये वैलिड नहीं होगा. ओके, सो दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ I am going to solve exercise 3.1. See, first question you have given, that is add or subtract the following numbers. Okay, see, I am going to solve your first question, that is first question 1 number, exercise 3.1 of 1a. In question number a you have given 43,522 plus 33,165. Okay, so
यू कैन ऐड आइदर कॉलम मेथड और वर्टिकल वे और हॉरिजेंटल। ओके, इस तरह से अगर रहेगा तो हॉरिजेंटल है आपका, ठीक है, इस तरह से होता था हॉरिजेंटल, और ये खड़ा होता तो वर्टिकल यानी, ठीक है, तो कॉलम मेथड। तो अब ये रफ में भी आप अरेंज करके आप इसको कर सकते हो, या फिर आप वंस को 1 से, टेंस को 10 से ऐड कर सकते हो एक एक करके, है ना। वंस को 1 से, टेंस को 10 से ऐड करो, फिर 100 वाले को 100 वाले से, ठीक है, यानी प्लेसेस वाले जो नंबर है, और 1000 वाले को 1000 से, और 10,000 वाले को 10,000 से ऐड करना है आपको, ठीक है, इस तरह से। सो नाउ लेट्स ऐड। अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप वर्टिकली अरेंज कर लेना रफ में, और उसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो लेट्स 5 + 2 7, 6 + 2 8, 5 + 1 6, 3 + 3 6, okay, and 4 + 3 7, okay, so you will get the 76,687, 76,687 ये आपका हो गया। ओके, now question number B. In question number B you have to subtract here, so let's do it. सो ये सिंपल है, कर लेना है आप लोग। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर ई। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। 154 माइनस 4073 माइनस 20237 प्लस 5,53,218। ओके, सो यहाँ पे क्या करना देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। सो हियर यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द all positive and all negative numbers. So how can you recognize whether the number is given in positive sign or negative sign? कैसे आप पहचानोगे? So the number given रहेगा तो उसके पहले फर्स्ट बिफोर द नंबर विच साइन, 5,53,218 के पहले क्या है, प्लस साइन है। देखो यहाँ पे, देखो ये प्लस साइन है। सो ये क्या हो जाएगा इसका, ये वाला नंबर किस में होगा, पॉजिटिव में। ये वाला नंबर आपका किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ओके, सो नाउ 20,237 बिफोर द नंबर इज नेगेटिव साइन, सी हियर माइनस साइन है इसके पहले, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये आपका माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आपका ये नंबर, माइनस वाला नंबर ये होगा, ठीक है। ओके, नाउ तो दिस इज योर माइनस साइन। सो अगेन 4073 बिफोर नंबर, अगेन माइनस साइन, दिस नंबर इज ऑल्सो माइनस साइन। सो हियर 154 दैट इज हियर इज नथिंग, दैट इज मीन्स व्हाट, प्लस साइन। अगर कुछ नहीं हो तो क्या हो बच्चों, वहाँ पे प्लस साइन होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये करना है। ओके, सो इस तरह से आपको पहले अरेंज कर लेना है, जो प्लस वाले नंबर हो उसको एक साथ कर लेना। तो मैं 154 और 5,53,000 को एक साथ करके लिख लेता हूँ, क्योंकि प्लस वाले को एक साथ कर लो। जब कभी भी आपके पास व्हेन एवर यू हैव गिवन दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, देन पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, राइट द ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, अलग अलग करके लिख लेना अच्छे सेपरेटली। तो अब मेरे पास प्लस वाला नंबर हो गया, तो नाउ यू कैन ऐड इन रफ। आई एम एडिंग हियर 5,53,218, दैट इज़ 154। सो यहाँ पे 154 जो है आपका, तो वंस प्लेस में आपका होगा, तो वंस, ओके, 5 आपका टेंस प्लेस में होगा, और 100 आपका किस में होगा, टेंस। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है आपको, ठीक है। 8 + 2 10, 5 + 7 3 and 3 5 and 5. Okay, now see what you got, 5,53,372. Okay, now and now you have given minus, and what you have to do, whenever you have given more than 2 numbers in negative sign, then आपको दो तरीका है, या तो आप ऐड कर लो, या तो आप इसको ऐड कर लो, या फिर सेपरेटली आपको पहले जो आपका आंसर ऑप्टेंड हुआ उसके माइनस करो, या फिर अरेंज करके आपको लिखो, जो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पहले आप अरेंज कर लो। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सो write it here and now write it here. So I am subtracting in rough, see, ओके, इस तरह से करने के बाद आपको फिर लिखना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से आप इसको कर सकते हो। पहले इस दोनों को लिख लो, ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करो, या फिर आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा आसान होगा, लेकिन आप सिंपल भी कर सकते हो। आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, ये जो फर्स्ट आपका दो एक्सप्रेशन है, इट इज़ 5,53,372 को 4,073 से माइनस कर लो, फिर जो आंसर ऑप्टेंड होगा उसको फिर 20,237 से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, सो लेट्स
तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ पहले. 12 out of 3 9, 16 out of 7 9, and here 2, and 13 out of 4 9, 13 out of 4 9, now 4 and 5. So you got a 5,49,000, 5,49,299 minus so minus 20237. अब इसको क्या कीजिए, फिर से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको. ठीक है, देखो 73202, इस तरह से अब इसको माइनस करो. 9 minus 7 2, 3 6 0 9 2 and 5. So 5,29,000, 5,29,000 is your required answer. Okay, so now अब I'm going to solve question number 2. तो इस तरह से एक बार देख लो आप कैसे करना है इसको, है ना. जब भी इस तरह से लंबा कोई एक्सप्रेशन हो तो सॉल्व करना है इस तरह से. अब सेकेंड नंबर जो है आपका, फर्स्ट आप इन दोनों को क्या करो, पहले सेपरेट कर लो, फिर जो आएगा ऐड कर लो. सिंपल कर सकते हो, या फिर आप जो मैंने बताया प्लस वाले को प्लस वाले के साथ पहले ऐड कर लो, फिर माइनस कर लो. दोनों तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, आप इसको बना सकते हो. ओके, वेरी सिंपल इट इज़. ओके, so now I am going to solve question number 2. Find the numbers which is ये more than the this number, that is 35,240 is more than the this number. तो more के लिए क्या करना है आपको, प्लस करना है, और लेस के लिए क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है. तो बस ये जो आपका जो है ये बड़ा है ना, और ये छोटा नंबर है, तो पहले इसको ऊपर लिखेंगे हम और इसको नीचे लिखेंगे, यानी कि इसको लेफ्ट साइड में और इसको राइट साइड में लिखेंगे. इस तरह से आपको करना है. सो आई विल शो यू हाउ कैन यू डू दिस. Question number 2. Now A. Sorry, I am going to solve question number B. 5204 less than 314613. So first you have to write on the left side, that is 314613 minus 52046. So I will show you. So arrange this in vertical एंड देन सॉल्व. ओके, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको. पहले अरेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ पे आप लिख देना. सो 13 out of 6 7, here you have that is 10 out of 4 6, and here 5, and here 2, and here 6 and 2. Okay, so 2,62,567 is your required answer. So इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, सो ये जो मोर वाला होगा, मोर में प्लस करना है. क्वेश्चन नंबर सी में भी सेम, यू डू द सेम इन क्वेश्चन नंबर सी ऑल्सो, 2 of C. एंड क्वेश्चन नंबर डी लेस, मतलब इसको भी माइनस करना है, और ये वाला इस तरह से करना है. सो क्वेश्चन नंबर 3. Now I am going to solve exercise 3.1 of question number 3. See, in question number 3 you have given the fill the blanks. Okay, आपको blanks को, खाली जगह को fill करना है, जो completely based है आपका, जो मैंने property we are talked about earlier. So इसको आपको उस property के according ही आपको बनाना है. So आई वॉन्ट दैट डू इट योर ऑन सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 3 मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद बनाओ. ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है. देखो सब नंबर जैसे आपका 99 पे 0 करोगे, और ये जी नंबर आपका क्या है, सोसाइटी प्रॉपर्टी पे है. उसके बाद आपका है ना, देखो यहाँ पे है ना, तो देख पा रहे हैं आप इजीली क्या आपका दिया हुआ है, गिवन है ऑलरेडी, है ना. तो ये नंबर है, देखो यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये 3 नंबर का ग्रुप जो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ABC. तो आपका जो है A दिया हुआ है, LHS में आपका A दिया हुआ है, और यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ. तो इस तरह से आप देखो इजीली आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर F आपका कम्यूटेटिव लॉ दिखा रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर G आपका एसोसिएटिव लॉ दिखा रहा है, और B क्या है आपका, जो आपका एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है उसका दिखा रहा है. तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सो ओके क्लास, देन थैंक यू. सो डू द एक्सरसाइज 3.1. In our next class we will discuss question number 4, which is based on word problem.